or the reason why you're in Raja Beta. Can I say it first, or should we? Well, Vedant is a boy. This one's working. Yeah. Cool. So Vedant is a boy who is arrogant about his work. When I say arrogant about his work, he's extremely confident about his work. And that's what I saw in Rahul the first time I saw his audition. And also he has a soft side to him, which means in the family, he had to be that Vedant, who is the banyan tree, who looks after everybody in the family at the cost of sacrificing his happiness. So that's what our Vedant was. And well, I think the press will ask you why you did this show, but this is what my take on Rahul, Sudhir and Vedant is. Sambhavna. So she's a girl next door. She has some fire. She's today's girl. And actually, she has lots of fire as you see the show. So you'll watch. Yes. Thank you so much. And please watch the show 6:30 Monday to Friday. Monday to Saturday now. Yeah, okay. So Monday to Friday. Thank you so much. Look forward to all of you all giving us your. Thank you, Smriti ji. I request Rahul and Sambhavna to tell us a little bit about what attracted you to the show. What is it that made you take on these roles? So I'll guess ladies first, Sambhavna. Can I go in? First of all, good evening, everybody. Thank you, ma'am, for your kind words. And thank you for being the gentleman that you've always been, Rahul, for letting me speak first. Yeah. Do you want to sit and do this? I'm in fact going to call Aparna ma'am back. In fact, you can join. I have one more thing to say. I'm sorry, while in my conversation, I also want to thank... about what made you all take up the show? So yeah, again, good evening, everybody. Why did I join this show? Because somewhere the entire concept of the show, इस show का जो concept है वो काफ़ी fresh है, काफ़ी नया है. जनरली जितना टीवी हमने देखा है हमेशा ऐसा होता है कि जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है जनरली सोसाइटी में भी हमारा ऐसा ही होता है कि वो एक घर को जोड़े रखती है, बांधे रखती है, जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक घर संभालने की, दैट इज़ व्हाट द फीमेल डज. What is fresh about this concept is the male doing it. एक बहू का जो भी कर्तव्य होता है एक घर में वो वेदांत करता है. तो एक क्लीशे लाइन है हमारे शो का कि वेदांत सब संभाल लेगा. सो नो मैटर व्हाट गोज रॉन्ग वेदांत सब संभाल लेता है. सो दैट कॉन्सेप्ट वॉज वेरी अट्रैक्टिव टू मी इन द फर्स्ट प्लेस. एंड देन कमिंग टू माई कैरेक्टर, पूर्वा जो है वो आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की है, वो इंडिपेंडेंट है, शी इज़ फियर्स, शी कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बट उसकी सोच बहुत बड़ी है. एंड शी नेवर वांटेड टू सेटल इन प्रयागराज, और वो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते. सो दैट इज़ समथिंग आई डीपली कनेक्ट विथ. आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई एम डीपली इन लव एंड वेरी मच कनेक्टेड टू माई फैमिली. एंड द कैरेक्टर दैट शी इज़ एंड द layers that the character, the layers that Purva has, I think that is something that attracted me. So yeah, so I would, just a moment. So I would like to thank ma'am, Aparna ma'am, Yuvraj sir for giving me this opportunity. Thank you Imran sir, and you know the entire cast and crew, because we've been working for the last 2 months or more now. और हम लोग जयपुर में शूट करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट आवर होम टाउन्स. और वहाँ पे भी द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट वी हैव एंड वी वर्क एज अ फैमिली एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अस, सो it's just like we are home. So yeah, so thank you for everything and thank you for this opportunity. Thank you, Sambhavna. Rahul?
Can we hear What was it the from you? question again? What attracted you to Vedant? I was offered the role. No, honestly, I mean, as an actor, you're trying to do your best at whatever gig you get at your hands. When Vedant was offered to me, first and foremost, it was an out-and-out male-oriented show that was being offered to me. And the core thing that really appealed to me at the end of the day, I mean, I remember Imran calling me, and he told me about a few things. So the only thing that really attracted to me was the fact that a man, and to what extent a man can go to save and to hold on to relationships, to family values, to ties, and also balancing, whatever he has, whatever has been inculcated to him. So that was the core feeling, and I think that was the sole reason I chose this role. Lovely. Guys, we turn to you all now. We open the house for Q&A. Please raise your hands and let us know. We'll pass you all the mics. Yeah. बोर्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये फैमिली जो है वो प्रयागराज की है। वो डॉक्टर वेदांत इज़ फ्रॉम प्रयागराज और वो पूरी जो त्रिपाठी फैमिली है वो वहाँ से है। हमने शूट भी वहीं किया था इलाहाबाद में, हालांकि अभी जयपुर में बाकी का शूट कर रहे हैं, बट बेसिकली इट्स फ्रॉम देयर। सो जहाँ तक दैट्स व्हाई दे पुट दिस। मैम 6:30 का टाइम रखा है आपने, ये क्या मतलब टाइम ठीक रहेगा शो के हिसाब से? अपर्णा जी। Actually, when the thinking actually which Yuvraj has instilled in me is a good show is time agnostic. अगर अच्छी कहानी हो तो मैं अगर 4 बजे भी डालूं तो लोग देखेंगे. And like I mentioned when I was talking, we wanted to build our pre-prime. तो 7 बजे we are already doing well. 7:30 बजे मनमोहिनी launch हुआ है. उसके बाद 8 and 8:30 are doing exceptionally well. So we're just pulling our pre-prime another half hour. इसलिए हमने ये शो 6:30 बजे लॉन्च किया है. And I think it's going to do incredibly well. Hello, Sambhavna ma'am. Hello. Yeah. Ma'am, what made you to shift from regional TV to this Indian television, regional industry to Indian television? Good evening. Basically, I generally didn't want to work in this industry per se from the very beginning. Because I was a lot into my academics and I wanted to join lectureship. But my parents being from this background, I thought कि experimental basis पे वहाँ पे एक project कर लेते हैं. And then I somewhere realized I had that feeling inside of me कि maybe I should actually go and try my luck out in Bombay and let's see if it works out for me, and I guess it did. That's all. It just came to me like that. So I didn't have it pre-planned. It just happened to me. हेलो अपर्णा जी, अभी इन कलाकारों ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो किसी पर्पस से आपने इनको गाना गवाया, कुछ कहिए इसके बारे में? Actually, the idea of doing this song largely came from my marketing team. It's not a part of the show. इस show के लिए हमने बहुत अच्छे, in fact, the songs that were playing when you were all getting seated are all the music that we've composed for this show. This song was actually written by my marketing team to kind of capture the gist of what this show was. कि वेदांत का character actually है क्या? So these lyrics were specifically written by the writer and composed by the composer based on a brief, because the marketing team wanted the story of the show told in a song. And we have a very talented cast. What we realized when we were shooting with them is everybody on this show, and some of them haven't come here, but there are a lot more people, are very musically inclined. So either they play an instrument or they have great voices. So we thought this would be an incredible way to just start this press conference and use their talents. Okay, ma'am, Shivam from Fever 104 FM. My question to you all on stage is exactly what the lead actress said कि इस सीरियल में ऐसा है कि जो मेन एक्टर है he is sort of playing a role that has been always played by Indian bahus.
So how big was risk of this show कि आपने कुछ नया लाने की कोशिश की है? How risky is this for you? It's Or are you not. very confident कि it is going to work 100% sure? I personally think it's going to work 100%, but that's not the point here. What we want to question with this show is, why is the job of holding a family together to stop all the arguments getting worse and make sure everyone is well bound always the job of the bahu? Because if you see any of the shows on Indian television, it's always the bahu doing this. Also on Z, and we have been known to take these chances before, and they have worked successfully for us. If you remember, some years ago, we made a show on similar lines with a male protagonist called Jamai Raja. Yes. Jamai Raja did very, very well for us. So we know the audience that Z has is very receptive to trying to think differently. So it's not that much of a risk that we're taking. And the story is just so well told in such a beautifully emotional way, you will forget Vedant is a boy or is a girl. That character is what you're going to love. Thank you so much, ma'am. All the best. Thank you so much. Hello. Yeah, my question. Hello. Sambhavna here in front. हेलो जी नमस्कार, मैं भी प्रयागराज से हूँ और एक सवाल ये है कि अभी जी की एक वेब सीरीज आई है रंगबाज, वो माफिया डान गोरखपुर के माफिया डान पे है, शिव प्रकाश शुक्ला पे, और अब आप प्रयागराज पर एक नया सीरियल लेके आ रहे हैं, तो पूर्वांचल पे फोकस करने का कोई खास वजह है जी का? पहला सवाल ये है। दूसरा, प्रयागराज में इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? और इन दोनों सवालों के जवाब। आप प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? अभी जी की एक वेब सीरीज चल रही है इस समय रंगबाज, वो माफिया शिव प्रकाश शुक्ला पे है, और अब आप प्रयागराज लेकर के आ रहे हैं, इस सीरियल के जरिए प्रयागराज को फोकस कर रहे हैं, तो पूर्वांचल को फोकस करने की क्या कोई खास वजह है? I don't think I'm the right person to answer this question. I will let you. ये स्टोरी जो है वो एक बहुत एजुकेटेड फैमिली की है। जो गंगादत्त त्रिपाठी थे, वेदांत के दादाजी, वो बहुत नामी वैद्य है जो इलाहाबाद के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो हमने सोचा कि शायद इलाहाबाद इज़ द करेक्ट प्लेस बिकॉज इट्स द हिंदी हार्टलैंड and it's the correct place where our educated university, I mean big large universities, Allahabad University जो इतनी famous है, और चूँकि वो family इतनी पढ़ी लिखी और मतलब रमेश को छोड़ के बाकी सब बहुत evolved है, दादी बहुत evolved है, तो बहुत अच्छी family है जो एकदम हिंदी heartland से आती है, इसलिए we thought that we should place the story there. There is and we yeah, तो हमने संगम पे shoot किया है. We shot in some of the gullies and lanes of Prayagraj. We've also shot at the university. Where else did we do that? The bridge, the new bridge and the old bridge. Both the bridges. जितना हम कर सके प्रयागराज में, हालांकि प्रयागराज की हालत बहुत ख़राब थी जब हम गए थे शूट के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, प्लस ये अभी जो this thing महाकुंभ के टाइम पे. So the work was going on. It was difficult, but बहुत अच्छा रहा वो schedule भी. लोग काफ़ी मदद के लिए आए आगे, and it was good. Yes. Hello. Yeah. My question is Sambhavna. Sambhavna, you seems to be very nervous. Are you nervous? Do I look nervous? Yeah.
जी, राजा बेटा के साथ आपको एक लड़का दिखेगा जो एक फैमिली में अडॉप्ट किया गया है, और कैसे जो उनके ग्रैंडफादर हैं, उनके ग्रैंडमदर हैं, जो उन्होंने उनको चीज़ें सिखाई हैं, जो वैल्यूज़ दी हैं, और वो कितना आभारी महसूस करता है उन सब चीज़ों का, और वो कैसे दादाजी के चल बसने के बाद पूरे परिवार को जोड़ के रखने की पूरी कोशिश करता है, कमाता है उनके लिए, उनके सारे खर्चे उठाता है, मेहनत करता है ताकि उसका परिवार खुश रह सके. सो आई थिंक ये बहुत सी द पॉइंट हियर इज़ दैट ऐसा हमने पहले देखा होगा, मे बी अ लेडी हैज़ डन दैट इन द पास्ट, बट फ्रेश कॉन्सेप्ट है. तो खास बात यह इस बार एक मैन इज़ डूइंग अ वुमेंस जॉब. ऑल्सो द प्रेजेंटेशन, हमने बहुत सारी चीज़ें पहले भी देखी थी, पर जिस खूबसूरती से हमने इसको चीज़ें दर्शाई हैं, काफ़ी मॉडर्न तरीके से हमने इसको अप्रोच किया है. सो वो स्टाइल बहुत रिफ्रेशिंग होगा. आई एम ग्लैड. ये तो मतलब एक लेडी का किरदार जो होगा वो ये निभा रहे, तो आपका किरदार कैसा होगा? जो एक मेल करता है वो आप करने वाली है या फिर कुछ अलग होगा? काइंड ऑफ पूर्वा का जो कैरेक्टर है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि टोटल मेल क्योंकि शी इज़ ऑल्सो सेंसिटिव, शी इज़ ऑल्सो वेरी लविंग वुमन, बट अगर ज़रूरत पड़े तो वो कुछ भी कर सकती है. वो माँ काली बन सकती है. शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि उसको जो चाहिए वो मिले, या फिर उसको जो सही लगता है वैसे ही हो सारी चीज़ें. Okay, besides this, एक gynecologist का रोल आप निभा रहे हैं, उसके अलावा जब आपको पता चला कि मतलब आपको वो सब करना है जो टेलीविजन पर बेसिकली बहू करती है, तो रिएक्शन क्या था आपका? जी, मैं तो इतना खुश हो गया बिकॉज आई रियलाइज्ड कि बहुत कम ऐसे मेल एक्टर्स होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. एंड आई वाज लाइक, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर मी टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर माई सेल्फ. थोड़ा डर भी लग रहा था बिकॉज इट्स द प्रेशर ऑफ द एंटायर शो फॉल्स ऑन योर शोल्डर्स, बट फिर उसको कहीं ब्रश ऑफ करते हुए आगे बढ़े और वी स्टार्टेड शूटिंग. Okay, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का आप लोग दोनों का बॉन्डिंग रहेगा शो के अंदर, उसके बारे में बताना. वेल, इनिशियल पोर्शन में ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर सिंस इनकी दादी और मेरी नानी एक दूसरे को जानते हैं, सो वी गेट कनेक्टेड इवेंचुअली. और फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है कि शादी हो जाती है हमारी, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती है बिकॉज वी डोंट लाइक ईच अदर. बट इवेंचुअली ये भी दिखाया गया है कि वेदांत को एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है पूर्वा के लिए. अब उसके बाद आगे क्या होता है, that you have to watch the episodes to know. Okay, प्रयागराज के साथ साथ जयपुर में भी शूट हुआ है, तो बिसाइड्स शूटिंग कितना एंजॉय किया है जब शूटिंग के दौरान कहीं घूमने गए? I haven't enjoyed. She has enjoyed. Can you tell about your stories of enjoyment? मैं काम कर रहा हूँ हर दिन. हाँ, so since he is राजा बेटा, तो इनको छुट्टी नहीं मिलती, ना ही इनका अर्ली पैकअप होता है, तो बेचारे हमेशा सेट पे होते हैं या आउटडोर पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. तो बाकी हम जो हैं, वी गेट आवर ऑफ डे, सो हम लोग जाते हैं फोर्ट घूमने, कभी चले गए, कभी वी गो पार्टिंग समवेयर. सो या वी हैव एंजॉयड अ लॉट. Good for you. सॉरी फॉर यू. जैसे कि आपने बताया ऑन स्क्रीन तो आप दोनों मतलब आप हेट करके ऑलमोस्ट इनसे आपको पसंद नहीं होंगे, लेकिन ऑफ स्क्रीन जानना चाहेंगे कि कैसा बॉन्ड रहा है और कितना एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ काम. देखिए, मैं आपको बताता हूँ. जब मैं पहले दिन पहुँचा था तो मैं बड़ा एप्रीहेंसिव था बिकॉज नई टीम थी, और मुझे लगा कि अगर बाई चांस ट्यूनिंग नहीं बैठती है, इट्स नॉट कि अगला दूसरा आदमी ख़राब है या सही है, दैट्स नॉट द पॉइंट. कभी कभार ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो फिर मैं काम कैसे करूँगा. बट आई एम सो लकी एंड आई एम सो ग्लैड कि जो हमारे एक्टर्स हैं और हमारा क्रू भी है, क्योंकि पूरे दिन साथ में ही होते हैं. सो एक छोटा सा बॉन्ड उन सब के साथ बन चुका है. वी आर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली. सो मतलब सेट की बात सेट पे, फिर घर जाके फिर अलग जोन में आ जाते हैं. Okay, आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे है ऐसे मतलब ऑफ स्क्रीन इनका नेचर कैसा है और कितना एंजॉय करती है उनके साथ काम? बहुत ही ज़्यादा. ही इज़ अ वेरी, वो ऐसा है कि वो किसी को भी अपने मतलब ही कैन मेक यू वेरी कंफर्टेबल. वो अगर कुछ नेगेटिविटी है या फिर कुछ नेगेटिव सा एनवायरनमेंट बन रहा है, ही हैज़ दैट समथिंग इन हिम. लाइक राहुल हैज़, इट्स नॉट वेदांत, इट्स राहुल सुधीर. सो वो जोन को वो चेंज कर सकते हैं, विद सम नॉटीनेस, सम फन, कुछ ऐसे बोल देंगे कि पूरा द एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी पॉजिटिव. सो वर्किंग विथ हिम एज सच इज़ अ लवली एक्सपीरियंस, एंड सो इज़ इट विद द एंटायर कास्ट. Okay, राहुल ने बताया कि आप काफ़ी टॉकेटिव हैं, बहुत बात करती हैं, लेकिन इनके बारे में जानना चाहेंगे राहुल कितने टॉकेटिव है, क्योंकि अगर हम इनको देखें तो काफ़ी शांत लगते हैं. सो राहुल सुधीर बेसिकली हैज़ अ स्विच. सो तो ये काफ़ी मूडी भी हैं. तो मैं मूडी हूँ. हाँ बिल्कुल. सो
और वो स्विच इनके हाथों में ही होता है, तो कभी इंटेंस मोड, कभी बकर बकर मोड, कभी गाना शुरू कर दिया तो बंद ही ना हो रहा है. सो देयर आर डिफरेंट जोन्स एंड डिफरेंट लेयर्स टू राहुल. ओके, उनके इस स्टेटमेंट पर कितना मतलब अग्री करते हैं कि हाँ आप ऐसे जी मैं इंटेंस से बिल्कुल अग्री करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस हूँ और थोड़ा फ़नी भी हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा अच्छा है. हाँ या आई थिंक शी इज़ राइट ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स. हाँ पर इतना मूडी नहीं हूँ जितना ये बताना चाह रही है. बहुत अच्छा हूँ मैं. स्विच, नॉट द मूड स्विंग्स. ओके, लास्टली क्या कहना चाहिए ऑडियंस? ओके. या 15 जनवरी 6:30 PM ZTV राजा बेटा. ओके, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. ओके, तो राजा बेटा बेसिकली मेल ओरिएंटेड जो है शो मेल ओरिएंटेड रहेगा. Yeah. तो किस तरीके का किरदार आपका रहने वाला है शो के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए. मेरा जो कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी क्यूट, इनोसेंट, बबली, वेरी पॉजिटिव गर्ल who is really emotionally attached to her sister and the grandmother as well. तो उसने पनखुरी का जो कैरेक्टर है ना, उसने कभी अपनी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं देखी है, क्योंकि वो सबसे छोटी है घर में, वो हमेशा बहुत पैम्पर्ड रही है. बट लाइक शी इज़ नेवर फेस्ड एनी हार्ड टाइम्स इन हर लाइफ. ऑब्वियसली आगे चल के शो में ट्विस्ट और कहानियाँ बनेंगी जो आप ज़रूर देखेंगे और आपको पसंद भी आएगी. बट the main thing that I was attracted to play Pankhuri's character was like Pankhuri is very much like me. Till now, whichever characters which I have portrayed, वो हमेशा मुझसे अलग थे. But Pankhuri बहुत मेरे जैसी है, तो मैं थोड़ी फेनिल डालना चाहती हूँ पनखुरी के अंदर. या it was very negative. But people loved it, I guess, and people appreciated my work for that. I just hope that the way people appreciate my character and my work in Kala Tika, they appreciate my character here as well in Raja Beta. ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात की है तो क्या लव ट्रायंगल देखने के लिए मिलने वाला है ऑडियंस? I would leave that to the audiences and my writers, and I'm really not the right person to comment on it right now. ओके, शो जो है वो प्रयाग जंक्शन है और अभी फिर जयपुर में शूट हो रहा है. तो अगर हम बात करें शूट के डिसाइड्स तो कितना एंजॉय किया है शूट्स के दौरान? शूट्स के दौरान पूरा जो कास्ट एंड क्रू है वो अब फैमिली की तरह बन गया है, बिकॉज वी डोंट हैव आवर फैमिलीज इन जयपुर. बट हम जब शूट करते हैं तो पैकअप के बाद भी हम साथ में डिनर करना, फ्लैट में सब लोग साथ में बैठ के हॉल में हम डिनर करते हैं, बातें करते हैं, तो एक फैमिली सा बॉन्ड बन गया है सारे एक्टर्स के साथ में. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी से ज़्यादा क्लोज हूँ या ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है. पूरी हम एक एज अ टीम है, एक फैमिली है. एंड यहाँ की फैमिली से जब बीच में मैं सूरत गई थी थोड़े दिनों के लिए, आई वॉज एक्चुअली मिसिंग राजा बेटा की टीम, ऐसा हो गया था. सो आई एम दैट मच इमोशनली कनेक्टेड टू दैम ऑल्सो. ओके, लास्टली क्या ऑडियंसेस को क्या कहना चाहिए अपने शो के लिए, क्यों देखना चाहिए उनके लिए? आई गेस ये स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट है जो अभी तक इंडियन टेलीविजन में आया नहीं है, क्योंकि अब तक यही दिखाया गया कि सारी जो घर का बोझ होता है वो सारा बहू ही संभालती है, बट इस शो में सब कुछ वेदांत कर रहा है. सो विद दिस डिफरेंट स्टोरी लाइन विद डिफरेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, आई फील दैट पीपल विल रिलेट टू ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एंड दैट्स वाई you should watch Raja Beta, because my only reason to take up this show was the storyline. Thank you so much. Thank you so much.